श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, बाद मुद्दत अपने उस मेहमान के साथ स्टूडियो में प्रस्तुत हूँ जो एक बहुत ही क्रिएटिव काम के लिए विदेश तक अभी घूम के आई हैं। मैडम अनुराधा दास आजकल एक फिल्म की डायरेक्शन के लिए अमेरिका के विजिट पे गई हुई थी, हाल ही में लौटी हैं। तो हमने इनसे कहा कि इन योर जर्नी टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ सम अमेरिकन मूवी, let us share your this journey and other things which you want to share with our audience. दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत. Thank you, Gambhir ji. It's always a privilege to come and talk to you. Yeah. अनुराधा जी, I would like to understand कि अमेरिका के किस हिस्से में आप गए हुए थे और क्या आपका अनुभव रहा है? So my film production started in Las Vegas. Okay. So उससे पहले थोड़ा सा रिवर्स जाके 20 साल देखते हैं. लास्ट के 20 years I am working as a social worker. Yeah. And as a motivational speaker, so I was always in front of the camera, just like we are talking to the audience. Yeah. So ऐसे चलता रहा काफी साल. So I was always in front of the camera. I did interviews for national television and all those things. Yes. So I enjoyed fashion it. shows as well. So always in front of the camera. Yes. So जब मेरी बायोपिक मेरे फ्रेंड्स ने बनाया लॉस वेगस में, I worked as an executive producer for that movie. Okay. In 2020, right after the lockdown. Okay. और वो कांस फिल्म फेस्टिवल में गया. So during that production, when I was behind the scene, looking at the production, managing the production, I developed this deep desire for production. Mm-hmm. I felt that camera is very powerful. Yeah. And storytelling through the camera is very powerful. Yes. क्योंकि as a motivational speaker, I always speak. Yes. I write books. Yeah. Then I have conversations. But then during the lockdown, all of us, we saw that the world was online. 70% of the people were on phones and on OTT platforms and are always online, and the youth especially. So that is where in Las Vegas I was sitting after the production was over. जिस दिन last हमने wrap up किया, I was sitting down and I was realizing that this is one of the best way to tell the world what you want to speak. Yeah. That is where the production house, A Rising Eagle, was formed. Now we have office in Las Vegas, registered under Nevada, and also we have office in Gurgaon, registered under Haryana government. Okay. Would you please repeat the name of the banner under which you are working? A Rising Eagle. Okay, A Rising Eagle. Yes. Yeah. Very good. Why eagle? Because eagle goes through a process where his eagle's age is 80 years. 40 years age में, half of the age में, it goes to a mountain and completely destroys himself. बिल्कुल अपने आप को खत्म करता है and waits. Yeah. And उसके बाद उसके नए feathers आते हैं. Yes. New growth आता है. Right. And the eagle lives for another 40 years. So when I studied it, if eagle would not go through that procedure, will die at the age of 40. Yes. So sometime when we go through the things that we don't like to go through, we need to understand that it's part of the process. Yeah. अगर हम वो तकलीफ से होके नहीं जाएंगे, अगर हम वो प्रोसीजर से नहीं जाएंगे, आगे का जो हमारा डेस्टिनी है उसको हम नहीं समझ पाएंगे. So that is why I named the company Rising Eagle. Beautiful. I am reminded of one of my ashar. It says कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है. जी. बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है.
ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, वही मर्द होता है। अब विमेन भी बोले। Yes, of course, मर्द indicates both the genders. Right. But So, I am wonderful. reminded of that, like eagle, you have to rise out of your ashes and you have to fight again for your life and then rise and rise and rise. Right. Yesterday I was honored by Inner Wheel Club, which is 100 years old club, and Okay. they have 5,000 women only in the Delhi NCR in this north region, Yes. and they honored me for 20 years of my service as a social worker. Surprisingly, yesterday was 27th of November. Yes. And years ago, 1995, 27th of November, I had jumped into a well to commit suicide. Okay. Imagine, like, God is a God of numbers. Yes. Like, when I looked back, why it had to be like 27th November? Yeah. It was a way of the universe. Yes. Many of you believe in that. And Yes. It's a way of God telling you that I notice everything. Yes. Yes. So they honored me for my service, my standing strong for all these years. Yes. So it's in a way because I feel that God uses people Yes. to talk to us. Yeah. So it was God trying to tell me that, my daughter, I have seen you, everything that you have gone through and you have stood for. Yeah. So I believe that everything is part of the process. हमें complaints नहीं करनी चाहिए अगर तकलीफ में हम चले गए हैं. बहुत बार हमारी गलती नहीं होती है, circumstances होता है या किसी और की गलती की वजह से हम स्ट्रगल करते हैं. बट जब हो जाती है कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई क्राइसिस हो जाता है, तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बिकॉज आवर attitude will decide our altitude. Yes, yes. Yeah. Again, I would like to say, see that this rubai of mine, कि तेरी एक चोट से सारी राहें खुल गई मेरी, गमों की बौछार क्या हुई, रूह तक धुल गई मेरी. सो एट टाइम्स जो चोट है वो आपको निखारती है, और निखारती ही नहीं, आपको उभारती भी है, और हम जीवन के एक छोर में डूबने लगते हैं और दूसरे छोर से उभर के अपने आप को पुनः स्थापित करते हैं. राइट, राइट. तो हम आपकी जर्नी पर बात कर रहे थे कि आपने इस बार अमेरिका में एक आने वाले समय के लिए फिल्म प्रोड्यूस करने का निर्णय लिया है, और उसके प्रोसेस में आप लगे. जी, लॉस वेगस में सारा फिल्म होगा. द एंटायर फिल्मिंग विल बी डन इन लॉस वेगस एंड मे बी फ्यू पार्ट्स ऑफ एरिजोना. और LA बेस्ड एक राइटर जो हॉलीवुड से कनेक्टेड है, उन्होंने इसको लिखा. आई नरेटेड द स्टोरी टू हिम, आई गेव हिम द सिनॉप्सिस, द आइडिया बिहाइंड इट. एक दो मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प में मुझे किया डेवलप करने में स्टोरी, बट इट वाज रिटन बाय लॉस एंजलिस बेस्ड राइटर जो मूवी लिखते हैं प्रोफेशनली. एंड उसके बाद हमने डायरेक्टर एंड एक्टर्स साइन कर लिए हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन द डिटेल्स. समर में हम कर सकते थे, बट इट्स वेरी hot in Las Vegas, so we postponed it to the winter. So we are getting ready to film it. Okay. अनुराधा जी, अभी मेरे ऑफिस में बैठे हुए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र कर रहे थे. मैं ये समझता हूँ कि आपका अमेरिका विजिट और आपका उस इंसिडेंट को नरेट करना, that in order to commit suicide you jumped in a well, and now you are taking such a big venture. How do you relate this law of attraction with such incidents or accidents? I believe all my base, like I have written almost 35 mini books, and all of them are available online, and they are based on how to live this life. So it's a practical tools. Is it only after once trying for death you come to know that how to live a life? Because जब मैं कुएं में कूद गई, interestingly, मुझे बचाया गया. Of course, it was 22 feet deep.
Okay. Uh, Okay. अगर So you were genuinely interested to go away from it. सो जब मैं नहीं गई एंड बाहर आई तो एक सेंस के साथ बाहर आई कि अब जीना पड़ेगा. Yes. सो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर फाइट करने की जो शक्ति है वो कुदरती है, दिया है ऊपर वाले ने. Yes. सो वो उसको हम रियलाइज नहीं करते हैं, हम गिव अप बहुत इजीली कर लेते हैं. सो वहां से मेरी जो जिंदगी के लिए लड़ाई शुरू हुई. Okay. और गिविंग अप एटीट्यूड जो था वो चला गया. और जब मैंने डिसीजन लिया कि अब तो जीना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें खुलने लगी. आसान नहीं था. I went through a lot of struggles. I went through a lot of things that I didn't want me to go through. I can understand. हम कोई भी पसंद नहीं करते हैं बुरा हो हमारे साथ या हम स्ट्रगल करें, इंसानों को पसंद नहीं है. बट अगर कोई चीज हो जाए तो क्या किया जाए. सो दैट्स वेयर स्लोली आई डेवलप्ड एंड इट वाज अ लॉन्ग जर्नी. इट वॉज लॉन्ग जर्नी ऑफ मेनी ईयर्स. एक दिन में मैं नहीं बदली, ना ही एक दिन में कामयाबी मिली. बहुत सारा स्ट्रगल से होते हुए गई. बट ओनली वन चीज आई केप्ट डूइंग इज नॉट टू गिव अप. If something is not happening, try something else. Like आप 10 बार चीजों को कोशिश करिए, 11वीं बार होगा. अभी किसी से मैं मिली, he said that I failed 13 times. 14th time they accepted me. So and आप सब जानते हैं जब लाइट बल्ब 10,000 बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद थॉमस एडिसन कुड कंप्लीट इट. सो बहुत बार हमें फेलियर मिलता है. All those steps were necessary for us to go to the next level, क्योंकि हर बार हम कुछ सीखते हैं. मैं गलत लोगों से मिली, गलत चीजें हुई मेरे साथ, रिलेशनशिप डिडंट वर्क आउट, बहुत सारी चीजें हुई. अनएक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है. एक चीज हमारे हाथ में, वो है हमारी एटीट्यूड. So that is where I felt that media is a big way for me to talk to people. क्योंकि जैसे मैं उभर के आई, मैंने रियलाइज किया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे होंगे. And to my surprise, thousands of people I have spoken to in last 20 years. And हमें लगता है सिर्फ हम प्रॉब्लम में हैं. लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं दुनिया में. Many people are struggling. Many people are trying to find the way. That is where I felt that media is one way that we can actually talk to people. So ये जो मूवी हमने बनाया है, आज तक जो भी मैंने बनाए हैं मूवीज, they are inspired by true stories. हमने थोड़ा सा फिक्शनल उसको बनाया है, जो भी हमने बनाया है. ये पर्टिकुलरली जो मूवी है ये गैंगस्टर्स की लाइफ है. मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ऑडियंस को कि हम अपनी रास्ता खुद चुनते हैं. We decide the path. And जैसे पाथ हम चुनते हैं, the path that we decide, that's where we go to our destiny. It can be good, bad. So हम अंडर प्रेशर आके बहुत बार गलत रास्ता चुनते हैं. अगर हम चाहें किसी भी पॉइंट में एक यू टर्न लेके हम आ सकते हैं वापस सही रास्ते की ओर. ये पूरा मूवी वही दर्शाएगा. और 5 गैंगस्टर्स की स्टोरी है. और एक विक्टिम है जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, और जिसमें मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर भी दिखाया है. हाउ इट इज स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर कितना डैमेजिंग है फॉर अ फैमिली, वो दिखाया है. और ये जो स्टार्स हैं, जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, हाउ दे चोज देयर लाइफ, वो दिखाया है. देखिए अनुराधा जी, मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ और आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि हमारे एक्शंस तो बाद में शुरू होते हैं, पहले हमारी थिंकिंग होती है. अगर हमारी सोच पॉजिटिव है, अगर हमारी सोच क्रिएटिव है, अगर हमारी सोच लोगों के प्रति संवेदनशील है, तो रिजल्टेंटली हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो भी पॉजिटिव. राइट. यहाँ पे हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है. जैसे कि मान लीजिए
जो कोल्ड है, वी कैच कोल्ड, वी Yes. से वी कैच कोल्ड. Yes. सो कोल्ड की जो वायरस है वो ऑलरेडी हमारे बॉडी में होती है. Yes. तब जब एटमॉस्फेयर में होता है कोल्ड तो हम उसको कैच करते हैं. जैसे ये टेबल है, ये कभी भी कोल्ड इसको पकड़ नहीं सकता, बिकॉज वायरस अंदर है ही नहीं. Yes. ये निर्जीव है, Yeah. राइट. सो जो भी चीजें हमारे अंदर होती है, अगर हमारे अंदर फेवर है, हम फेवर अट्रैक्ट करते हैं. Yes. हमारे अंदर प्यार है, हम प्यार को अट्रैक्ट करते हैं. हमारे अंदर माफी है, हमें दूसरों से माफी मिलता है. Yes. सो जो भी हम हैं, सिर्फ उतना ही हम अट्रैक्ट बाहर से कर सकते Exactly. हैं. हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि एक्स पर्सन की वजह से मैं फेल हो गई, Yeah. या फिर उसने मुझे रोक लिया. इट्स ऑल अबाउट अस. आवर डेस्टिनी इज, जो ऊपर वाले ने हमें इतनी ताकत दिया है कि हमारी जो डेस्टिनी है पूरी तरह से हमारे हाथ में है. Exactly. हमने चाबी अंदर से बंद किया हुआ है. Yes. बाहर से कोई खोल नहीं सकता. सो इट्स टोटली अप टू अस. Yes. How we handle our life, that is what I have written in this book, which is known as supernatural life. Okay. So how you can actually attract what you want. Right. So where to fix your life inside. Yes. जहाँ पे कोई जाता नहीं है. हमारे ऐसे एरियाज हैं लाइफ में Yes. जहाँ पे कोई नहीं जाता है, एंड Right. ऐसे कॉर्नर्स हैं जो हम छुपाते हैं. Yes. How to deal with those situations so that we can bring into pass everything that we want to attract. Right. So that's Yes. law of अभी manifestation. हाल में ही यूपी में एक बहुत प्रोमिनेंट इंसिडेंट हुआ है. जी. एक बीटेक का स्टूडेंट बस के कंडक्टर और ड्राइवर को चॉपर से हर्ट करता है और उसको पकड़ लिया जाता है. जब उससे पुलिस इंक्वायरी करती है तो मालूम पड़ता है कि वो अतीक अहमद, जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके लाइफस्टाइल से वो अपने आप को इतना प्रभावित किए हुए था कि उसी के ढंग से कपड़े पहनना, वैसी ही सोच रखना, वैसी ही दादागिरी और जो है वो गुंडागिरी करना चाहता था. रिजल्टेंटली उसने इस बात को एडमिट किया कि मुझे लगा कि ये एक तरीका ऐसा है जिससे मैं बहुत जल्दी प्रोमिनेंस में आ जाऊंगा और मेरी भी उतनी ही दादागिरी एस्टैब्लिश हो जाएगी जैसे अतीक अहमद की थी. तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. जैसी हम सोच रखेंगे वैसे ही धीरे धीरे हम उसके प्रति आकर्षित होते हुए आगे बढ़ जाएंगे. जब मैं ये मूवी लिख रही थी जी, आई इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ गैंगस्टर्स. ओके. आप सरप्राइज होंगे कि गैंगस्टर्स का एक रूल है जी, that you have to, if you want to really come into the higher level, you have to kill people. So आपको वो गन देंगे. yes. When I interviewed one guy that why you quit, so he said that I was given a gun and I was asked to go and kill, और मैं नहीं कर पाया. yes. So जब आप हाई रैंकिंग में जाना चाहते हैं, Yeah. उतने ज्यादा आपको किलिंग्स करने होते हैं, Yes. उतने ज्यादा आपको क्राइम करने होते हैं. Exactly. तभी आपको इनर सर्कल लेता है. yes. नहीं तो आप आउटर सर्कल में रह जाते हैं. Yeah. तो बड़ा बनने के लिए वो मारते हैं. Yes. सो इट इज टोटली रेजोनेटिंग विद व्हाट यू जस्ट सेड. एग्जैक्टली. जब ये अतीक और इसके भाई को बहुत ही टीनेजर यंग बच्चों ने पॉइंट ब्लैंक पिस्टल से मारा, उनको भी जब पकड़ा गया तो उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि भाई हम प्रोमिनेंस में आना चाहते थे, हम भी गैंगस्टर बनना चाहते थे, और उन्होंने एक आध प्रोमिनेंट गैंगस्टर का नाम भी लिया. जी. तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसी ढंग से निर्णय होता है कि कोई व्यक्ति बड़ा होके पॉजिटिव साइड में जाएगा जी. या नेगेटिव साइड में जाएगा. जी. ये उसकी सोच पर निर्भर होता है.
Right. I really feel that the movie that I'm doing is going to be a blockbuster because हम इसको commercially भी successfully बना रहे हैं. जैसे हम आर्ट फिल्म की तरह नहीं बना रहे हैं. स्टोरी हमारी आर्ट फिल्म की है. बहुत thought provoking story है. Yes. But हम इसको commercially भी successful बना रहे हैं. And the reason I decided to do it in America is the work culture I really liked. Yeah. बहुत easy है वहाँ काम करना. Though there are a lot of paperwork, people are very particular about things, and you were telling that Yes. they are very punctual. So it's easy to work with that culture. Yes. So that's where I felt that because I'm a rising up producer, so I think that will be good for me. So coming back, जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, I would really appeal to everybody that बुरा करना बहुत आसान है. Yeah. There is nothing, no credit to it. Yeah. अच्छा करना मुश्किल है. Yes. So I would challenge you, why not do something right? Yes. Why not leave a legacy behind? Yeah. क्यों ना हम ऐसा एक जीवन जिए जिसको हम जाने के बाद भी हम याद रखे जाएंगे. Yes. देखिए ये लोग भी याद रखे जाएंगे, बट रॉन्ग किताब में. Exactly. क्यों ना हम ऐसा एक जिंदगी जिए जिससे हमें लोग सालों तक याद रखे after we are lived. Yes. And why not manifest that kind of life? Exactly. So I suppose with this good message to our audience, we wish you all the best, keeping this thing in mind that it is your choice. You are the real chooser. If you want to choose a good life, you can do it. If you want to choose a bad life, you can do that. True. So it is up to you that what path, what role you want to adopt in your life. With these words, I must convey my thanks to Anuradha ji that she spared some time to come to our studio, and we could record her views on her latest journey to America and her steps towards becoming a very successful director of films. Thank you. Thank you so much. God bless you, and a lot of love to our Radio Boost audience. Keep watching, keep sharing it with others also. God bless you. Thank you.